لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام بنی و انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے بہت سارے مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کا مختصر حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اللہ کے یہاں یہی معتبر ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کوئی دوسرا دین لے کر کے آئے گا وہ اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہوتا۔ دین کی حفاظت ان چیزوں میں سے ہے جن چیزوں کی حفاظت کرنا انسان پر واجب اور ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں، کئی ایسی چیزیں علماء نے فقہاء نے بیان فرمائی ہیں احادیث میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں غور و فکر کرنے کے بعد، اور وہ کیا ہے؟ 5 چیزیں ضرورات الخمسہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ تو ان 5 چیزوں میں سے دین کی حفاظت پہلے نمبر پر آتی ہے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ دین کی حفاظت کرنا، عزت کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا، عقل کی حفاظت کرنا اور نسل کی حفاظت کرنا۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت انسان کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ الضرورات الخمسہ کے نام سے 5 ضروری چیزوں کے نام سے علماء کے درمیان میں ان چیزوں کو جانا جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر دین کی حفاظت کرنا ہے۔ جو ضروری چیز ہے وہ دین ہے۔ دین کیوں ضروری ہے؟ دین ضروری اس لیے ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا، ہمارے خالق کا، ہمارے مالک کا
اور ہمارے رازق کا بنایا ہوا ہے، وہ ہم سے اس دین کو فالو کروانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس دین پر عمل پیرا ہو جائیں۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ ہم جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں، جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، وہ صرف اور صرف اسی کی ہیں۔ ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا حرکت کرنا، ہمارا دیکھنا سننا بولنا، اور اسی طرح سے کھانا پینا، غرض یہ کہ جتنی بھی چیزیں ہم اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں، یہ ہمارے خالق اللہ رب العالمین کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہ چاہے تو ہم چل نہیں سکتے، اگر وہ نہ چاہے تو ہم اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، اگر وہ نہ چاہے تو ہم کھا پی نہیں سکتے، اگر وہ نہ چاہے تو ہم اس دنیا کے اندر جی نہیں سکتے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سارا کا سارا یہ اللہ رب العالمین ہی کی وجہ سے ہے۔ وہی ہمیں جلاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہماری تربیت کرنے والا ہے، وہی ہمارے سلسلے میں تدبیریں کرنے والا ہے، تو اسی کی بات کو ماننا ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، اور اسی کے دین کو فالو کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ دین کی حفاظت اس لیے اور دین کی محبت اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے دین سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بڑی بڑی جو محبتیں انسان دنیا کے اندر کرتا ہے، ان ساری محبتوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا۔ ہم اور آپ غور کریں، اپنے ارد گرد کن چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے؟ ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے بھائی بند سے محبت ہوتی ہے، کنبے خاندان سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح سے مال دولت سے محبت ہوتی ہے، یا اسی طرح سے تجارت سے ہمیں محبت ہوتی ہے، مکان سے محبت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی چیز ہوتی ہے؟ ان ساری محبتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے اولاد، اگر تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جنہیں تم جمع کر کے رکھتے ہو، بینک بیلنس کر کے رکھتے ہو، وہ مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تجارت جس کے مندا پڑ جانے کا تمہیں ہمیشہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں گھاٹا نہ لگ جائے، کہیں منافع کم نہ ہو جائے، اس بات کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکان جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے، احب الیکم، یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے اور خاندان والے، مال، تجارت اور گھر، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے دین کی سربلندی سے، فتربصوا، انتظار کرو اللہ رب العالمین کے فیصلے کا، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنے فیصلے کو لے کر کے آ جائے۔ دھمکائے اللہ رب العالمین۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ آ جانا محلے میں، کسی سے کوئی بات ہوتی ہے کہ آ جانا محلے میں، دیکھ لیں گے تمہیں کتنے پانی میں ہو، لیکن ہماری یہ دھمکیاں ایسی ہوتی ہیں، چلا بھی جاتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ پہلے بہت روب و دبدبا تھا ہمارا، اور بڑے
आतंक मचाया हमने, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चूड़ी ही टाइट की, हम पर गैरों को मुसल्लत कर दिया। अब हम चूचिरा करने के काबिल भी नहीं। अपने घरों की, अपनी इज्जतों की, अपने दीन की हिफाजत करने के लिए हम तैयार नहीं हैं और इस काबिल नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की धमकियां हमारी धमकियों की तरह से नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फतरब्बसू, इंतजार करो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले का। आ जाएगा फैसला उसका क़यामत का दिन, फिर देखेगा वो तुम्हें। और अल्लाह फासिक कौम को हिदायत नहीं करता है। तो दीन की मोहब्बत इसलिए जरूरी कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन है, उसने इससे मोहब्बत करने का हुक्म अता फरमाया है। दीन अल्लाह और उसके रसूल का बनाया हुआ है, अल्लाह का बनाया हुआ, रसूल उसको लेकर के आए। इसलिए दीन की मोहब्बत सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है। अपनी जान से ज्यादा, अपनी माल से ज्यादा, अपनी आल औलाद और कुनबे और खानदान से ज्यादा मोहब्बत दीन की होना चाहिए। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दीन पर अमल करने का हुक्म अता फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में इसकी हिफाजत का हुक्म दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आपके चचाजाद भाई भी है, छोटे से बच्चे से 10 साल के रहे हों, और हम भी सोचे, गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल के बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। 10 साल के रहे होंगे और भी कम के गुलाम, अल्लाह के नबी कहते हैं या गुलाम, ए गुलाम, इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, ऐ बच्चे मैं तुम्हें चंद बातें सिखा रहा हूं, होशियारी से सुनो, गौर से उन कुछ बातों को। छोटे से बच्चे हैं, आज हम क्या अपने औलाद को दीन नहीं सिखा रहे हैं। इर्तिदाद के दहाने पे हमारी औलाद चली गई है, हमारे बच्चे बच्चियां मुर्तद हो रहे हैं। माल की वजह से दीन की मोहब्बत उनके अंदर नहीं है, इस वजह से वो हमारे घरों को खैराबाद करती हुई गैरों के साथ चली जा रही है। हमारी गैरत और हमीयत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है मेरे भाई। हमारे अंदर दीनदारी नहीं आ रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखा रहे हैं? अपने छोटे से भाई को, छोटे से बच्चे को सिखा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे फला और फला बनना है। अपनी बच्चियों को सिखाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। क्या हमने अपने बच्चों को दीन की बातें सिखाई? अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है ये हमने बतलाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या चाहता है ये हमने बतलाया अपने बच्चों को? मेरे भाइयों, ये है जरूरी चीजें, वो तो बाद की चीजें हैं। आप डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, लेकिन एक मुसलमान बनाने के बाद आप जो चाहें उसे बनाएं। मुसलमान आपने नहीं बनाया, इर्तिदाद के दहाने पर और कॉलेजेस में आपने उसको डाल दिया। वो मुर्तद होकर के आपके घर आ रही है, मोबाइल फोन आपने उसके हाथ में दे दिया, रात रात भर वो अपने यार दोस्तों से बातें कर रही है, और जब भी मौका मिलता है वो रफू चक्कर हो जाती है। हमारी कितनी बहनें इस तरह से हमारे हाथ से निकलती चली जा रही हैं, कितने भाई मुर्तद होते चले जा रहे हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं जो मुर्तद हो गए। इसमें कमी किसकी है? कमी हमारी है। हमने उन्हें दीन नहीं सिखाया, हमने उन्हें दीन की बातें नहीं बतलाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, मैं तुम्हें चंद बातें सिखा रहा हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात फरमाई, इहफज़िल्लाह यहफज़का। पहली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई? इहफज़िल्लाह यहफज़का, अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह की हिफाजत क्या है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाउज़ुबिल्लाह हमारी हिफाजत की जरूरत है? नहीं।
अल्लाह की हिफाजत से मुराद उसके दीन की हिफाजत करना, उसके दीन पर अमल करना, उसके दीन को लोगों तक पहुंचाना, ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की हिफाजत। फरमाया इहफ़ज़िल्लाह, अल्लाह की हिफाजत करो, उसके दीन की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, तुम उसे अपने सामने पाओगे, मदद करने के लिए वो तुम्हारे सामने होगा। हमने अल्लाह के दीन की हिफाजत नहीं की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नजरअंदाज कर दिया, हमने अमल नहीं किया, हमने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नजरअंदाज कर दिया। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह के दीन की हिफाजत ही से सरबुलंदी मिल सकती है। अगर अल्लाह के दीन पर अमल करेंगे, अल्लाह की बतलाई हुई बातों पर अमल पैरा हो जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी राहें हमारे सामने खोल देगा जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे हालात अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा फरमा देगा, ऐसे असबाब हमारे सामने खुल जाएंगे कि हम वहमो गुमान भी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद फरमाएगा। वइज़ा सअल्ता, और तीसरी चीज फरमाई वइज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, जब तुम्हें सवाल करना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से करो, किसी दूसरे से सवाल करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ही से तुम्हें मांगना है, उसके अलावा किसी दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं। वइज़ा फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करो, उसके अलावा किसी दूसरे से मदद तलब करने की जरूरत नहीं। ये बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से बच्चे को सिखा रहे हैं। और इन चार बातों के बाद जो बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई, वो बहुत अहम बात बतलाई। फरमाया अच्छी तरह से इस बात को समझ लो, गिरह लगा लो, बहुत अच्छी तरह से ये बात अच्छी तरह से समझ लो। क्या कि अगर सारी दुनिया के सारे लोग इकट्ठा होकर तुम्हें नफा पहुंचाना चाहें तो नफा नहीं पहुंचा सकते हैं, मगर उतना जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया, उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। जितने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, उससे ज्यादा तुम्हें मिलने का नहीं है। और सारी दुनिया के लोग इकट्ठा हो जाएं, सारी दुनिया के सारे लोग इकट्ठा हो जाएं तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर, लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं मगर उतना जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया है। कलम उठा लिया गया, रुफियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सूफ़, कलम उठा लिया गया है और कागज खुश्क हो गया है, जो कुछ लिखा जाना था वो लिख गया है, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बच्चों को सिखा रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? खुद हमें नहीं मालूम है ये बातें, खुद हम नहीं जानते हैं दीन क्या है, दीन पर अमल करना क्यों हमारे लिए जरूरी है, अल्लाह और उसके रसूल से हमें मोहब्बत क्यों करना चाहिए, खुद हमें नहीं मालूम, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? फिर शिकवे होते हैं, शिकायत होती है कि हम दीन पे अमल करते हैं, इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो है हमारी मदद नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि वैसा नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, जिस तरह से हमें अमल करना चाहिए वैसे हमने अमल नहीं किया, जिस तरह से दीन की हिफाजत करना चाहिए वैसे हमने दीन की हिफाजत नहीं की। साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगियों को देखो, उन्होंने दीन पर किस तरह से अमल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई हुक्म फरमा दिया कि ऐसा करना है, फौरन अमल करने के लिए तैयार हो।
अपनी महबूब चीजों को उन्होंने तर्क कर दिया, छोड़ दिया। जुमा इबादत का दिन है। इस जुमे के लिए हम सर्दी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। टाइम पर, वक्त पर हम नहीं आ सकते। नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर जो फर्ज की है, वो फर्ज नमाज हम वक्त पर अदा नहीं कर सकते। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को देखें, जंगे खैबर का मौका है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन खाना बनाने में लगे हुए हैं। गधे के गोश्त से हांडियां भरी हुई हैं। उस वक्त गधे का गोश्त हलाल। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐलान करते हुए आते, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन लुहूम हुमरिल अहलिया, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू पालतू गधे के गोश्त से मना फरमाते। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अपनी हांडियों को फेंक दिया। किसी ने उस गोश्त को हाथ नहीं लगाया, जबकि वो उससे पहले खाया करते। शराब की हुर्मत नाज़िल हो रही है। कई कई साल पुरानी शराबें उनके पास मौजूद हैं, और शराब जिसके यहाँ ज्यादा पुरानी, वो बहुत कदर की नजर से देखा जाता है। अरे उसने तो इतनी साल पुरानी शराब से ज़ियाफत की है, बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था अरबों में। लेकिन हुर्मत नाजिल हो गई, शराब हराम है, अब कोई इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बयान फरमाते हैं कि मदीना की गलियों में शराब बह रही थी। शराब की बोतलें और मटके सारे के सारे मदीना की गलियों में साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने उड़ेल दिए। और हमसे दीन की बातें हमारे सामने होती, दीन की बातें कही जाती हैं, सुन्नतें बयान की जाती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जिक्र हमारे सामने होता है, तो ये समझते हैं कि ये बस खुतबे, ये एक फॉर्मेलिटी है, ये इबादत एक बना हुआ एक तरीका चला आ रहा है, उसी तरीके को बस फॉलो कर लेना है। बस हमने इसे कदर की नजर से नहीं देखा है मेरे भाई। इसीलिए आज ये परेशानियां, ये दुख हमारे ऊपर आ रहे हैं। आज हमारे दिल तकलीफ में है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे पहले बहुत सारे मौके दिए। अल्लाह हर कौम को मौका देता है। अब तक हमारे पास बहुत सारे मौके थे, लेकिन हमने दीन को लोगों के सामने पेश नहीं किया। हम दीन पर खुद ना अमल किए और ना ही दूसरों तक दीन को पहुंचाया। दीन की अच्छाई हमने लोगों के सामने नहीं रखी कि उन्हें मालूम होता दीन क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह और उसके रसूल क्या चाहते हैं। अगर ये हम बतलाए होते तो मेरे भाइयों, आज ऐसे हालात यहाँ मुसलमानों के ना हो। हमने बतलाया नहीं। तिजारतों में हमने धोखे किए लोगों के साथ, मिलावटें की हमने लोगों के साथ, और इसी तरह से कारोबार में हमने लोगों के पैसे ले लिए तो पैसे हमने वापस नहीं किए। हमारी शाख एक बेईमान और इसी तरह से मिलावटी के नाम से मशहूर हो गई। आज मुसलमान को लोग ऐसी ही नजरों से देखते हैं कि मुसलमान दूसरे मुसलमान पर, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर भरोसा नहीं करता है। सामने दो दुकानें अगर हैं तो गैर मुस्लिम पर ज्यादा उसे भरोसा होता है कि यहाँ मुझे चीज सही मिलेगी, मिलावट के बगैर मिल जाएगी, लेकिन ये मुसलमान है, इसके यहाँ मिलावट मिलेगी और चीज हमें अच्छी नहीं मिलेगी। ये किरदार हमने बनाया है, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नहीं सिखाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है? आप बाजार में पहुंच जाते हैं, बाजार में ढेरी लगी हुई है, गेहूं की, गल्ले की ढेर लगे हुए हैं। एक ढेर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ डाला, देखा
नीचे गीला गल्ला है, ऊपर सूखा गल्ला है। कहा ये क्या? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में बारिश हो गई, वो भी क्या है जरा सा। कहा इसे ऊपर क्यों नहीं रखा? इसे तो ऊपर रखना चाहिए, ये सूखा तुमने ऊपर रखा है, गीला नीचे, धोखा देने के लिए। आपने फरमाया कि जिस शख्स ने हमें धोखा दिया, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं। लेकिन आज मुसलमानों के कारोबार में चले जाएं या इसी तरह से और जो दूसरी चीजें हैं दुनियावी, किसी भी मामले में आप चले जाएं, शराब की दुकानों पर चले जाएं, जुए की महफिलों में चले जाएं, लंटी बाजी के अड्डों में चले जाएं, गर्ज ये के बुराई की जितनी भी जगह है वहां आप चले जाएं, मुसलमान आपको पेश पेश आगे आगे मिलेंगे। हर जगह आपको मुसलमान आगे आगे मिलेंगे। मेरे भाइयों, ये दीन की हिफाजत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इसीलिए इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमसे क्या कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्न और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और इबादत सिर्फ रोजे नमाज का नाम नहीं है, दीन सिर्फ और रोजे नमाज का नाम नहीं है। मेरे भाई, दीन सिर्फ ये नहीं है कि कुर्ता पहन लिया और पैजामा पहन लिया, दीनदार बन गए, और दाढ़ी रख ली और दीनदार बन गए। दीन मुकम्मल हमारी जिंदगी से जुड़ा, कारोबार हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम के मुताबिक होना चाहिए। बाजार में चलना हमारा जो स्ट्रक्चर, हमारा ढांचा है, हमारा जिस्म है, हमारी हरकत सकनात, हमारा हर फेल दीन के मुताबिक होना चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ ये मुसलमान जा रहा है, सामने वाले को लगे कि ये मुसलमान है, वो मुसलमानों के किरदार को देख करके उससे मोहब्बत करने वाला बन जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और खैरुल कुरून में ऐसे ही था, वो मुसलमानों को देख करके ईमान ले आया करते, मुसलमानों को देख करके उनके अंदर ईमान जाग जाया करता था। आज मुसलमानों को देखकर लोग नफरतें करते हैं, क्योंकि आज हालात मेरे भाइयों ऐसे बना दिए। मेरे भाइयों, ये हालात जब तक हमने नहीं बदलने हैं तब तक अल्लाह की मदद हमारे साथ में नहीं होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद नहीं करेगा। अल्लाह ऐसे ही किसी कौम की मदद नहीं करता है जब तक कोई दूसरी कौम अपने हालात को नहीं बदलती है, दीन के मुताबिक नहीं करती है, तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन हालत नहीं बदलता है। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने हालात को बदले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अमल पैरा हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन पर अमल पैरा हो जाए। ये जो छोटी मोटी तकलीफें आती रहती हैं, ऐसी बहुत सारी तकलीफें आई हैं और इससे पहले भी आई हैं, इसके बाद भी आती रहेंगी, लेकिन असल ये है कि हम दीन पर अमल पैरा हो जाएं, और दीन पर अगर अमल पैरा हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हमारे साथ होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दीन से मोहब्बत करने वाला बना दे, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बना दे। हमारा जीना और मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो। हम जब तक इस दुनिया के अंदर रहे ईमान पर कायम व दायम रहें, जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।